हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपी कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदानेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। तो श्री राधे गोलोकानंद भगवान की जय। बोलो श्रीमद् भागवत की जय। हरे कृष्णा एवरीवन। प्रणाम चाचा जी। प्रणाम। जय श्री कृष्ण। खुश रहो। कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और जय श्री कृष्णा सुमित। जय श्री कृष्ण भैया। हरे कृष्णा तरुण अजय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सचिन रवि। हरे कृष्णा एवरीवन। So actually डॉक्टर कमल दास जी, स्वामी डॉक्टर कमल दास वेदांती जी महाराज तो घर तो आ चुके हैं। I will probably call him in like 5 to 7 minutes. उनके थोड़ा गर्म पानी वगैरह ले रहा है तो तब तक हम लोग we can read few श्लोक्स। तो 5-7 मिनट थोड़ा श्लोक पढ़ते हैं, फिर महाराज जी को बोलेंगे he will speak on श्रीमद् भागवतम for some time. So that'll be really nice to hear him. तो जैसा कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, we are on श्लोक 32 of chapter 2 canto 4। तो चौथे स्कंद में दूसरे अध्याय का कल 32 श्लोक हमने पढ़ा था, और अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो प्रजापति दक्ष और जो महायज्ञ कर रहे हैं उसमें लॉर्ड शिवा और सती जी के जो कन्वर्सेशन है उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। और इस समय बिकॉज प्रजापति दक्ष गॉट ऑफेंडेड, महाराज Lord Brahma and Lord Shiva did not get up for his welcoming Daksh. So Prajapati Daksh got upset and then he gave some shrap to Lord Shiva. So Nandishwar, disciple of Lord Shiva, gets shrap to all the Brahmins who are there and also Maharaja Daksh, right? So for that, Bhrigu Muni then got up and then he gave shrap to all the Lord Shiva and his disciples. So that's what was going on. And right now what we are reading is what Bhrigu Muni is saying. Yeah. So Bhrigu Muni is giving shrap to all the disciples of Lord Shiva, and he's saying that by blaspheming the principles of the Vedas. He's saying this because Nandishwar gave shrap to all the Brahmins because they did not oppose what Prajapati Daksh was doing, to Lord Shiva. So he is now giving shrap to them, saying by blaspheming the principles of the Vedas, which are the pure and supreme path of the saintly persons, certainly you followers of Bhutpati, Lord Shiva, will descend to the standard of atheism without a doubt. Yeah. So all disciples of Shiva is saying that you will descend to atheism. Yeah, which means you will be continuously in the cycle of birth and death. Yeah, is what is being said by Bhrigu Muni. So let's read the next shlok. I think we'll read few shloks and then we'll call Vedanti Ji Maharaj. So Anil Ji, पढ़ेंगे आप? जी यस। मैत्रेय उवाच तस्येवं वदतः शापं भृगोः स भगवान् भवः निश्चकाम ततः
kinchidvimana iva sanugaha. The sage Maitreya said, when such cursing and counter-cursing was going on between Lord Shiva's followers and the parties of Daksha and Bhrigu, Lord Shiva became very morose. Not saying anything, he left the arena of the sacrifice, followed by his disciples. Hare Krishna. Hare Krishna. Yeah. So because this counter cursing was going on between Lord Shiva's followers and Daksh, Prajapati and Bhrigu Muni, Lord Shiva left that place. Yeah. Nishchakrama Tatah. And actually, pretty nice purport. So we are going to read this, Tarun. Here, Lord Shiva's excellent character is described. In spite of the cursing and counter-cursing between the parties of Daksha and Shiva, because he is the greatest Vaishnava, he was so sober that he did not say anything. The Vaishnava is always tolerant, and Lord Shiva is considered the topmost Vaishnava. So his character, as shown in this scene, is excellent. He became morose because he knew that these people, both his men and Dakshas, were unnecessarily cursing and counter-cursing one another without any interest in spiritual life. Hare Krishna. Hare Krishna. Sumit. From his point of view, he did not see anyone as lower or higher because he is a Vaishnava. As stated in Bhagavad Gita 5.18, Panditaha Sama Darishnaha, one who is perfectly learned does not see anyone as lesser or greater, because he sees everyone from the spiritual platform. Thus, the only alternative left to Lord Shiva was to leave in order to stop his follower, Nandishwara, as well as Bhrigu Muni, from cursing and counter-cursing in that way. Hare Krishna. Hare Krishna. Yeah. So for everyone had gathered for that Mahayagya, and now because of this, Lord Shiva and followers left. And before that, Maharaja Daksh had already left. Yeah. So read the next slok. चाची पढ़ेंगे आप? अच्छा, ठीक है. Sachin. ते अपि विश्वसृजः सत्रं सहस्रपरिवत्सरान् संविधाय महेश्वास यत्रेज्य ऋषभो हरिः. The sage Maitreya continued, O Vidura, all the progenitors of the universal population thus executed a sacrifice for thousands of years. For sacrifice is the best way to worship the Supreme Lord, Hari, the personality of Godhead. Hare Krishna. Hare Krishna. Yeah. So the sage Maitreya continued, and as we know, this conversation is going on between Maitreya Muni and Mahatma Vidur. Yeah. So Ganga Tat par Mahatma Vidur is asking all the questions to Maitreya Muni, and Maitreya Muni is responding. And currently Maitreya Muni is talking about the Prajapati Daksh and Lord Shiva and Sati's story. And Mahatma Vidur has asked Maitreya Muni that why Sati, right, who is like such renowned, why would she give away the life in the yajna? And that's the story which is being told by Maitreya Muni right now. Yeah. And that's what we are reading. So when Shiva left, Lord Shiva left, the yajna is still going on, and he's saying that did the yajna for thousands of years. Yeah, it says here Satram Sahastra Parivatsaran, for thousands of years that yajna went on. Yeah. So let's just read this purport. Ajay. Sure. It is clearly stated here that the stalwart personalities who generate the entire population of the world are interested in satisfying the Supreme Personality of Godhead by offering sacrifices. The Lord also says in Bhagavad Gita 5.29, Bhoktarah yagna tapasam. One may engage in performing sacrifices and severe austerities for perfection, but they are all meant to satisfy the Supreme Lord. If such activities are performed for personal satisfaction, one is involved in the pasanda or atheism
But when they are performed for the satisfaction of the Supreme Lord, one is following the Vedic principle. All the assembled sages perform sacrifices for 1,000 years. Hare Krishna. Hare Krishna, yeah. Ravi? Yes. आपलुत या भरतन यत्र गंगा यमुनायान्विताः विरजेनात्मना सर्वे स्वस्वं धाम ययुस्तः. My dear Vidura, carrier of the bows and arrows, all the demigods who were performing the sacrifice took their bath at the confluence of the Gangas and the Yamuna after completing the yajna performance. Such a bath is called Avabharta Snana. After thus becoming purified in heart, they departed for their respective abodes. Hare Krishna. Hare Krishna. Yeah. So after the yajna, says Avbhritam yatra Ganga Yamuna Yanvita. So then they took bath in the Ganga and Yamuna river, and then after that they departed for their respective abodes. So all the, because we know, remember, all the Rishi, Munis and Devtas and everyone came for this Mahayagya. So after this yajna, they departed back to their original place. And so it says the yajna was done at that time, but what is being mentioned here, yeah, so read this Jyoti. Okay. In this age of Kali, it is practically impossible to perform the Deva Yagna or sacrifices to the demigods. As such, in this age, Srimad Bhagavatam recommends Sati Kirtana Yagna, Sankirtana Yagna, Yagna Sankirtana Prayaryajantihi Sumedasaha. In this age, the intelligent person completes the performance of all kinds of yagnas simply by chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Tasmin tuste jagat tustaha. When Lord Vishnu is satisfied, all the demigods who are parts and parcels of the Supreme Lord are satisfied. Hare Krishna. Hare Krishna. Yeah? So the very important fact mentioned here is because in today's age of Kali, first of all, we don't have thousands of years, because as we know, in age of Kali, the expected age is maybe, let's say, 100 years. But in Dwapar Yug, it was 1,000 years. In Treta Yug, it was 10,000 years. And in Satyug, what was the expected age? 100,000. 100,000 years. Yeah. So that's why we see, like, they were doing yajna for thousands of years. So it is not just saying 1,000, but it was actually the age was that much, right? So in this age of Kali, we cannot do those kind of yajna. And there are a lot of Vedic procedures which should be followed when you are doing the yajna. Otherwise, it doesn't go right. So what Chaitanya Mahaprabhu has given us is that in this age of Kali, all kinds of yajna can be performed by simply chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So Hare Nam, Kevalam. And then it's also saying that when Lord Vishnu is satisfied, all the Devatas who are parts and parcels of the Supreme Lord are also satisfied. Yeah. So, and the good thing is, this ends the Bhakti Vedanta purpose of the 4th canto, 2nd chapter of the Srimad Bhagavatam, entitled Daksh Curses Lord Shiva. Yeah. So, Srimad Bhagavatam ki jai. Yeah. So we already completed 2nd chapter of the 4th canto. Yeah. And the next chapter is the chapter 3, which is talks between Lord Shiva and Sati. Yeah. So what happens after the yajna is Sati, then another yajna is performed by Maharaja Daksh. And then what happens is what we are going to read next. Yeah. So I think it's a good time to call Swamiji, Vedantiji. Yeah. And I think Jyoti and Ravi, if possible, you can also be on the video, but let me, I will ask Swamiji to come and say a few words to us. Yeah.
तो स्वामी जी का गर्म पानी बस वो कंप्लीट कर रहे हैं. He should be here in 5 minutes. तो आएंगे तो वी कैन चाहिए तो हम लोग शुरू कर सकते हैं. नेक्स्ट शुरू कर दें अपन, थोड़ा और 5 मिनट पढ़ लेते हैं, तब तक आ जाएंगे स्वामी जी. क्या So we'll start with chapter 3, and chapter 3 is talks between Lord Shiva and Sati. So let's see. Maitreya Vacha Sada Vidishyato Revam Kalo Vedriyamanayo hai Jamatu hai Swasurushapi Summahanati Chakrame. So Maitreya continued in this manner the tension between the father-in-law and son-in-law, Daksh and Lord Shiva, continued for a considerably long period. Yeah. So Maitreya Muni is saying, and Maitreya Muni is saying it to whom? Vidur. Mahatma Vidur, yeah. That's the conversation which is going on. Maitreya Muni. Mahatma Vidur. Yeah. And Mahatma Vidur is saying that after that yajna, where Daksh got offended, then Lord Shiva got offended, and this tension between the father-in-law and son-in-law continued for a long time. Yeah. So read the next slok, Sumit. Yada bhikshokto dakshatsu brahmana paremishthina prajapatinam sarvasha madhipate samyo bhavata. When Lord Brahma appointed Daksha, the chief of all the Prajapatis, the progenitors of population, Daksh became very much puffed up. Hare Krishna. Hare Krishna. Yeah. So it says, although he was envious and was inimical towards Lord Shiva, Daksh was appointed by the chief of all the Prajapatis. Yeah. That was the cause of the excessive pride. Aye, Swamiji. So Swamiji is here. So, you know, we'll. Hare Krishna. So Swamiji, Swamiji, Dr. Kamal Das Vedanti Ji Maharaj. He is very well renowned speaker on Ramayana and Srimad Bhagavatam, and of course all the scriptures, Hindu scriptures. He has big ashrams in Kashi, in Madhya Pradesh, in Vrindavan, and Swamiji is of course always in association with like all the top Sant Mahatmas of India like Baba Ramdev and everyone else. So we are so fortunate to have him here. You know, we are only a small number of people who are reading Srimad Bhagavatam on a daily basis for last, this is our 281st, like 280 सेशन है श्रीमद् भागवतम का, और हम लोग चौथे स्कंद में है, सेकंड अध्याय आज कंप्लीट हुआ. So that's so really nice. So we welcome Maharaj, and you know, थोड़ा ज्ञान महाराज से मिले. ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः. बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ईश्वरी की जय, राधे जय जय श्री राधे
जय 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 श्री राधे। मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली अनुभव करता हूँ कि आप जैसे भगवत भक्ति परायण लोगों के बीच में श्री गजेंद्र कावड़ा जी के माध्यम से इस सत्संग में मुझे भाग लेने का अवसर प्राप्त हो रहा है। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं और पुराण के 10 लक्षणों का निरूपण श्रीमद् भागवत में किया गया है। जिसमें 10 लक्षणों का निरूपण हो उसे पुराण कहते हैं, महापुराण। और वो 10 लक्षण हैं, अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थान पोषण मूतयः मनवंतरे सानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रया। ये 10 लक्षण हैं। सर्ग सृष्टि, विसर्ग सृष्टि, स्थान पोषण, पोषण मदनुग्रह। तो अत्र सर्गो विसर्ग स्थासन पोषण ऊतया, ऊति मानी कर्म वासनाएं, जिनका 7वें स्कंद में वर्णन है। और मनवंतरे सानुकथा, मनवंतरों की कथा 8वें स्कंद में है। ईशानु मानी ईश्वर के अनुगमन करने वाले, ईश्वर के भक्त, तो उनकी कथाएं 9वें स्कंद में है। हम इतने राजाओं का वर्णन भागवत में है कि उनके शायद नाम नहीं गिन सकते, इतने राजाओं के नाम 9वें स्कंद में गिनाए गए हैं। विशेषता उसमें यह है कि हर एक व्यक्ति से जीवन में कोई ना कोई भूल होती है। तो 9वें स्कंद में भी कई पात्र हैं जो गलतियां करते हैं, जैसे सौभर ऋषि भी है, दुर्वासा ऋषि भी हैं, और भी ऐसे कई पात्र 9वें स्कंद में हैं जो गलतियां करते हैं, लेकिन वो अंत में कुछ अच्छा कर लेते हैं, भगवान की भक्ति की ओर मुड़ जाते हैं। अंत भला सो सब भला। तो 9वें स्कंद के माध्यम से ये बताया गया है कि सुदुर्लभ मानव जीवन जो हमें प्राप्त हुआ है, भले ही ऐसा तो कोई भी नहीं है ईश्वर के अतिरिक्त जो कह सके कि मैंने कभी कोई गलती नहीं की, लेकिन अंत में जो ईश्वर की ओर झुक जाए, भगवान की भक्ति को अपने जीवन में उतार ले, तो फिर वो श्रेष्ठ मार्ग पर चल पड़ता है और ईश्वर उसे स्वीकार कर लेते हैं। 10वें स्कंद को निरोध स्कंद कहा गया है। निरोध का मतलब यह है कि हमारी जो चित्त वृत्तियां संसार में भटक रही हैं, ये ठहर जाए। तो किसमें ठहरे? तो कस्मिन निरोधा, तो कहते हैं भगवती, भगवान में हमारी ये इंद्रियां ठहर जाए। तो फिर कहते केन निरोधा, किस माध्यम से ये इंद्रियां भगवान में ठहरे? तो कहते हैं भक्तिया, भक्ति के माध्यम से, जोर जबरदस्ती से नहीं। भक्ति मानी प्रेम, सात तस्मिन् परम प्रेम रूपा भक्ति अमृत स्वरूपाचा। हे ईश्वर, तुम्हें परम प्रेम ही भक्ति है और इसके अतिरिक्त कुछ और नहीं है। तो ये जो 10वें स्कंद है उसमें सगुण भगवान की लीलाएं हैं, दिव्यतम लीलाएं हैं। जिस लीलाओं को, ऐसी ऐसी लीलाएं हैं जिन लीलाओं को श्रवण करके ब्रह्मा को भी मोह होता है। तो उन लीलाओं को श्रवण करके हमारा जो संसार में भटकता हुआ मन है वो भगवान श्री कृष्ण में अवरुद्ध हो जाता है। और 11वें स्कंद को मुक्ति स्कंद कहा गया है। तो इसमें उन 31 अध्याय हैं, जिसके प्रारंभ के जो 4 अध्याय हैं, उन 4 अध्यायों में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार की मुक्ति की बात है। और फिर 24 अध्याय में जो मनुष्य के अंदर में 24 गुण रहते हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, प्रमाण, पृथक, अपृथक, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म आदि, इन सबसे मुक्ति हो जाना। तो ये इस प्रकार से हम देखते हैं 5 और 24 29 हो जाते हैं। बाद में 2 अध्याय और बचते हैं 11वें स्कंद में, उनमें स्वरूप मुक्ति है। उनमें एक में जैसे जो भगवान के साथ में, भगवान के गौलोक से जो भक्त लोग अवतार लेकर के भगवान की लीला में सहयोग करने के लिए आए थे, जो यदुवंश में अवतरित हुए थे। अवतीर्य यदोर्वंशे भगवान भूति भावना कृतवान यानि भी स्वात्मा तानि नो बद्भिस्तरात्। अवतीर्य यदोर्वंशे भगवान भूति भावना। तो भगवान ने जो अवतार लेकर के जो यदुवंश में अवतरित होकर के आए थे, तो भगवान ने देखा कि अब हमारा काम तो जो धरती पर अवतार होने का था वो काम तो हो चुका है। कृत्वा दैत्य वधम कृष्णा सरामो यद्भिर्वृता भुवोवतारयद भारम जविष्ठम जनयन कलिम। उन्होंने पृथ्वी का भार उतार दिया।
तो उनको लगा कि अब मुझे भी अपने धाम को जाना है और ये लोग जो मेरे साथ में अवतार लेकर के यदुवंश में आए हैं इनको भी। तो फिर आप जानते हैं कि श्राप के माध्यम से और वो आपस में लड़ करके, तो ये स्वरूप मुक्ति है। वो भी अपने स्वरूप को त्याग करके दिव्य धाम को जाते हैं और भगवान भी अपने शरीर के साथ में ही गौलोक जाते हैं, क्योंकि भगवान का शरीर परिवर्तित नहीं होता। तो प्रभास क्षेत्र से उनकी भी दिव्य लीला स्मरण होती है। और 12वें स्कंद को आश्रय स्कंद कहा गया है। इसमें परीक्षित का मोक्ष और उसके साथ साथ में फिर जो ऋषि हैं मार्कंडेय ऋषि, वो भगवान से भगवान की माया का दर्शन करने का आग्रह करते हैं। तो श्रीमद् भागवत एक ऐसा सदग्रंथ है जो माया के डर से शुरू होता है, क्योंकि जो इस कथा के वाचने वाले हैं परम पूज्य शुकाचार्य जी महाराज, वो माँ के गर्भ से इसलिए जन्म नहीं लेते कि उन्हें माया कहीं न लग जाए। तो माया के डर से शुरू होती है श्रीमद् भागवत, और माया में निर्भयता के साथ में, क्योंकि फिर वो मार्कंडेय ऋषि कहते हैं क्या मुझे माया आपकी देखनी है, और माया के बीच में वे भगवान का दर्शन करते हैं। तो कुछ संसार के लोग ऐसे होते हैं जो भगवान के बीच में संसार को खोज लेते हैं, लेकिन जब हम भागवत कथा के माध्यम से अपने आप को चित्त विशुद्ध कर लेते हैं तो हम संसार में भी भगवान को खोज लेते हैं, और वही उन्होंने किया है। तो आप अभी जो चतुर्थ स्कंद का आपका अभी चिंतन मनन चल रहा है, इसको जो माना गया है वो जो महत्वपूर्ण है, अत्र सर्गो विसर्गच्छ स्थान पोषण मुतया। चतुर्थ स्कंद में स्थिति का निरूपण है, और इसमें यह बताया गया है कि जो 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को व्यक्ति अपनी साधना के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। कोई भी चीज दुर्लभ नहीं है। और इसी में आप अभी देखेंगे कि अभी तो आपका शंकर जी का चरित्र चल रहा है, और शंकर जी के चरित्र में भी हमें बहुत बड़ी बड़ी प्रेरणाएं इसमें मिलती हैं। भगवान शंकर जी के चरित्र के माध्यम से भगवान कहते हैं नागम प्रजेश वाला नाम वर्णय नानुचिंतये देव माया विभूतानाम दंडस्तत्र धृतो मया। वो जब वो उनको दंडित करते हैं दक्ष को, तो कहते हैं कि मैं तो लोगों को सदमार्ग पर चलाने के लिए ही दंड का मैंने विधान किया है, अन्यथा मैं किसी के क्रोध पर, किसी की गलती पर मैं कभी नाराज नहीं होता हूं। लेकिन यदि मैं दंड ना करूं तो जो नहीं दंडे करो खले तोरा, तो भ्रष्ट हो श्रुति मारगे मोरा। यदि मैं अपराधी को दंड ना दूं तो फिर अनुशासन भंगता बढ़ेगी, इसलिए दंड देना मुझे अनिवार्य हो जाता है। इसलिए मैंने दक्ष को दंड दिया। तो ध्रुव के चरित्र में अभी आप आगे चल करके पढ़ेंगे, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। इसी को मैं संक्षिप्तता में आपको बता दूं। और क्योंकि मैं भी अभी एक जगह प्रवचन करके ही आ रहा हूं मंदिर में, और हमारे श्री गजेंद्र जी ने कहा कि हमारे भी सत्संग में आपको थोड़ी चर्चा करनी है, तो मैं आपके बीच में उपस्थित हूं। ध्रुव भगवान के अनन्य भक्त हैं। ध्रुव और प्रहलाद ये 2 भक्तों का सर्वोच्च नाम माना जाता है। ध्रुव जी का चरित्र श्रीमद् भागवत में जो है, उसके माध्यम से हमें एक बड़ी प्रेरणा मिलती है। वो ये प्रेरणा है कि रामायण और भागवत में एक बात बताई गई है कि जिन भक्तों के विकार भगवत दर्शन के बाद में भी नहीं जाते, उनके विकार सत्संग में समाप्त होते हैं। इसलिए सत्संग करना चाहिए। सत्संग यही है जो आप लोग कर रहे हो, अच्छे लोगों के बीच में बैठना, भगवान से जुड़ना, यही सत्संग है। ये जरूरी नहीं कि संत ही आपके बीच में हो तो ही सत्संग है। आप सभी संत हैं और परस्पर भगवान का चिंतन कर रहे हैं, तो ये सत्संग है। तो ध्रुव को आप देखोगे कि उन्होंने 6 महीने की तपस्या से यदि के पादेन स पार्थिवाय विकस्तौ तदंगुष्ठ पीड़िता मही, और उन्होंने भगवान का दर्शन कर लिया। लेकिन अब भगवान का दर्शन करने के बाद में भी आप देखोगे वो राजा बन गए, और राजा बनने के बाद में उनके भाई उत्तम को एक यक्ष ने मार दिया। फिर उनको इतना क्रोध आया कि जितने जितने यक्ष थे उन सभी यक्षों के ऊपर 10-10 बाणों से उनको भेज डाला। उस समय यक्षपति कुबेर बड़े दुखी हुए, और ध्रुव के जो पिताजी के पिताजी हैं मनु, उनके पास स्वर्ग में गए, और उन्होंने कहा कि देखो ये आपकी परंपरा में उद्भूत ध्रुव ये क्या कर रहा है। और तब रणभूमि में महाराज मनु और कुबेर दोनों ध्रुव के सामने प्रकट हुए।
और ध्रुव के सामने प्रकट होकर के उन्होंने ध्रुव को कहा है कि बेटा ये तुम क्या कर रहे हो, अलम बत्साति रोशन पापोमयी वृत्ति में विहत, बेटा एक क्रोध को रोको, क्रोध तो भक्ति में बाधक है। नायम मार्गो ही साधुनाम, नायम मार्गो ही साधुनाम ऋषिकेशानुवर्तिनाम यदात्मानं पराग्रह्य पशुवद भूत वैशम। साधुओं का कर्तव्य नहीं कि हिंसा करें, क्रोध पाप कर मूल। परशुराम जी से लक्ष्मण जी ने कहा है कि क्रोध पाप कर मूल, यही बस नर अनुचित करें चले हैं विश्व प्रतिकूल। यही बात महाराज मनु ने ध्रुव जी से कही कि नायम मार्गो ही साधु नाम, ये साधुओं का काम हिंसा नहीं है। और ऋषि के सानुवर्ती नाम, और जो भगवान नारायण का अनुसरण करते हैं उनको तो ऐसा काम करना ही नहीं चाहिए। यदात्मानम पराग्रही है, तुम भूल गए हो कि सारी आत्माएं अपने ही अंश हैं और उनको तुम घास और मूली की तरह काट रहे हो, ये तो उचित नहीं है। तो यहाँ पर महाराज मनु ने उपदेश देते हुए बड़ी अच्छी बात ध्रुव से कही कि भगवान को कठिन तपस्या के द्वारा प्रसन्न कर लेना ये कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और दर्शन भी दे देते हैं। बड़ी बात यह है कि एक बार जब परमात्मा हम पर प्रसन्न हो तो फिर वो कभी नाराज ना हो, ये जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और भगवान को सदैव प्रसन्न रखने के लिए मनुष्य को 4 गुणों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। श्रीमद् भागवत में बहुत प्यारा ये श्लोक है। महाराज मनु कहते हैं कि तितिक्षया करुणया मैत्र्या चाखिल जंतुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसिद्धति। ये 4 गुण अगर हो तो भगवान कभी नाराज होते ही नहीं। और वो 4 गुण कौन कौन से हैं? तो कहते हैं तितिक्षया, अपने से बड़ों के प्रति सहनशील बनो। अगर बड़ों ने डांट दिया, कुछ कह दिया तो मुंह फुला के मत बैठो, नाराज मत हो कि आज मुझे क्यों डांट दिया, बड़े हैं कोई बात नहीं। तो कहते हैं पहला लक्षण है साधु पुरुष का, भक्त का, कि तितिक्षा, बड़ों के प्रति सहनशील बनो। और दूसरा लक्षण है छोटों के प्रति उदार बनो। आपने सुना होगा दोहा, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। इसलिए छोटे अगर गलती कर दे तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा उनको क्षमा करने की प्रवृत्ति मन में बनाओ। तो तितिक्षया करुणया और मैत्र्या चाखिल जंतुषु, और संसार के जितने भी प्राणी हैं, कीट पतंगे, उन्हें अकारण मत मारो। हो सके तो अपनी तरफ से उन्हें को सहयोग करो कि वो भी जीवित रह सके। गर्मियों में लोग पानी रख देते हैं, दाना डालते हैं। भारतवर्ष में आप देखते हो कि नदियों में जाकर के लोग आटे की गोलियां बना बना के मछलियों को डालते हैं। वो बात अलग है कि एक तरफ लोग खाते हैं, लेकिन दूसरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो दाना डाल करके उन्हें चुगाते हैं, जलाते हैं। तो अपना अपना कर्म अपने साथ में रहता है। तो तितिक्षया करुणया मैत्र्या चाखिल जंतुषु, संसार के जितने भी प्राणी हैं उनमें मित्रवत व्यवहार रखो, किसी को भी अकारण खत्म मत करो। जड़भरत जी एक चींटी तक को भी अपने पांव के नीचे नहीं आने देते थे। तो और चौथा जो लक्षण है बड़ा महत्वपूर्ण है, समत्वेन च सर्वात्मा, सभी प्राणियों के सुख और दुख को अपने सुख दुख की तरह अनुभव करो। भगवान कृष्ण 6वें अध्याय में भगवद गीता में कहते हैं, आत्मौपमेन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखम वायरी वा दुखम सा योगी परमो मतः। जो अपने सुख दुख की तरह दूसरे प्राणियों के भी सुख दुख का अनुभव करता है और उनकी मदद करता है, वह मेरा ही स्वरूप है। तो ये 4 चीजें अगर हमारे जीवन में होंगी तो ईश्वर कभी नाराज ही नहीं होगा। और वो है बड़े लोगों के प्रति सहनशील, छोटे के प्रति दयावान, सभी प्राणियों में पारिवारिक दृष्टि, और सभी के दुख सुख को अपने जैसे सुख दुख के। हमें गर्मी लगती है, महाभारत में एक लाइन में धर्म की व्याख्या की गई है कि धर्म है क्या, तो कहते हैं आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। जो वाणी, जो व्यवहार, जो आचरण आपको अपने लिए अच्छा न लगे वो आप दूसरे के साथ में ना करें। ये एक लाइन में धर्म की व्याख्या है और मैं समझता हूँ इससे बड़ी धर्म की व्याख्या और कुछ हो नहीं सकती। तो ये जो महत्वपूर्ण 2 चीजें थी मैंने आपके बीच में आज सत्संग में रखी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगा और बड़ी खुशी हुई कि आप इंटरनेट के माध्यम से भी और इससे सत्संग को चला रहे हैं। भगवान की ऐसी मंगलमय कृपा, क्योंकि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ये सुर दुर्लभ जीवन प्रहलाद ने भी श्रीमद् भागवत में कहा है
कि कौमार आचरित पाग्यो धर्मान भागवतानि ही दुर्लभम मानसम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। बड़े सौभाग्य से मानव जीवन मिलता है, उसको सत्संग और ईश्वर स्मृति से हम सार्थक करें, ये भी बात कही गई है। और साथ साथ में श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में ऋषभ देव जी जो जैन के प्रथम तीर्थंकर हुए हैं, श्रीमद् भागवत में उनका भी चरित्र है। उन्होंने ये कहा है, नायम देहो देह भाजाम लोके कष्टान कामान रहते विडुजामे तपो दिव्यम पुत्रकायेन सप्तम शुद्धये दस्मात् ब्रह्म सौख्यम तुरंतम। ये नायम देहो देह भाजाम लोके, ये जो सुदुर्लभ मानव जीवन मिला है, ये कुकर सूकर की तरह विषय भोगों में नष्ट करने के लिए नहीं मिला है। इसलिए हमें ईश्वर की स्मृति, अच्छे आचरण, परोपकारी प्रवृत्ति के माध्यम से इसे निरंतर सार्थक करना चाहिए। तो ये जो भागवत के कदम कदम पर मनुष्य को मनुष्य बनने की प्रेरणा दी गई है, जो बहुत ही अच्छी है और बड़ी सौभाग्य की बात है कि आप लोग ऐसे महानतम सदग्रंथ श्रीमद् भागवत को भी सत्संग में चला रहे हैं। आपकी ये श्रद्धा और भक्ति नित्य निरंतर अभिवर्धित होती रहे, आप स्वस्थ रहे, ठाकुर जी अपने श्री चरणों में आपको निरंतर प्रेम अभिवर्धित करें। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण, सभी लोग बोलिए, मेरे तक आवाज आएगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, नारायण वासुदेवा। हरि ओम। कन्या को बता दिया। हाँ, मैं तो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सो अच्छा था क्यों डॉक्टर वेदांती जी? बहुत अच्छा। मैंने उनको अभी जस्ट आधे घंटे पहले ही बताया था कि आप कुछ श्रीमद् भागवतम के बारे में ही बोलना है आपको। सो यू जस्ट केम एंड स्पोक सो मच डेप्थ। और यहाँ मंदिर में चल रहा है अभी, तो मंदिर में रामायण के ऊपर चल रहा है इनका। तो रामायण में भी काफी ऐसी सारी चीजें बताई जो ऐसे जनरली पढ़ने में नहीं आती है। सो इट वाज रियली नाइस। सो इट्स गुड, नाइस टू हैव हिम विद अस। I think it's already time. तो अभी हम लोगों ने Monday to Wednesday कर दिया है, so we don't read on Thursdays, right? So we'll see you back on Monday again at 10 o'clock. And तो थोड़ा भजन सुनेंगे, 3-4 मिनट। एक्चुअली मैंने आज डॉक्टर वेदांती जी का ही निकाला है YouTube से, so we'll probably see that, and then we'll see you on Monday, 10 p.m. EST. Yeah, your time 7. Okay. So we'll just play for this for some time, and then and then we'll see you on Monday. Yeah. So just 1 second. Let me put it up. श्री जी पुरम मानी क्या हुआ? श्री जी का पुर है, बरसाना। So just a second. संत से पूछा, बोलो आपको बरसाने का अर्थ क्या होता है? बोले बरसाने का अर्थ क्या होता है? सीधा सा अर्थ होता है कि वो राधा रानी जी का प्रकट हुआ बरसाना का। नहीं, बरसाने का मतलब ये है कि और देवता तो कृपा करते हैं और राधा रानी जी कृपा बरसाती हैं, इसलिए वो बरसाने वाली है। बरसाने वाली वो इसलिए है क्योंकि और तो देवता थोड़ा थोड़ा कृपा करते हैं, हाथ रख दिया कृपा कर दी, लेकिन राधा रानी जी कृपा बरसाती हैं, अनवरत कृपा की वर्षा होती है। राधा रानी जी की कृपा के बगैर
इस ब्रजमंडल में कोई प्रवेश ही नहीं कर सकता। भगवान कृष्ण जी को भी ये अधिकार नहीं है। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा नौमिड्यते ब्रह्म से तड़िदम्राय, कहा वो सब ठीक है, लेकिन उसके लिए तो इन्हीं से अनुमति मांगो, यही अनुमति देंगे। श्री किशोर जी की कृपा से होती है। ऐसे दिव्यतम भूमि में आप पाटोत्सव के इस दिव्यतम महोत्सव में उपस्थित होकर के सुंदर कांड को आप श्रवण कर रहे हो। हनुमंत लाल जी की महाराज की भक्ति संपूर्ण भारतवर्ष में है और ब्रजमंडल में विशेष रूप से है। कल हमने आपको मंगलाचरण के 2 श्लोकों का चर्चा आपके बीच में की। आज जो इस कांड के देवता हैं श्री हनुमंत लाल जी महाराज। अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहम धनुज वन कृशानुम ज्ञानिनामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम भाति जातम नमा। रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमा। अतुलित बलधाम श्री हनुमंत लाल जी की मंगलाचरण का ये श्लोक है। श्री हनुमंत लाल जी महाराज क्या है? अतुलित बल धामम, अतुलित बलशाली है हनुमंत लाल जी महाराज। श्री रामचरितमानस में अतुलित बलशाली 5 लोगों को कहा गया है। इसमें हनुमान जी महाराज हैं अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहम धनुज वन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। और दूसरे कौन है? श्री भरतलाल जी महाराज हैं अतुलित अतिथि राम लघु भाई। अतुलित बलशाली है श्री भरत जी महाराज। और 2 और हैं अतुलित बल योद्धा। वो कौन है? सुग्रीव ने जब राम और लक्ष्मण जी को आते हुए देखा, आगे चले बहुर रघुराया ऋषिमुख पर्वत निराया तार सचो सहित सुग्रीवा आवत देख अतुल बल शिवा। ये राम और लक्ष्मण ये दोनों अतुलित बलशाली। तो ये हो गए 4। और एक कौन है? बोले मेघनाद सम अतुलित जोधा। एक मेघनाद। अब इनको अगर क्रम से देखें तो 2 अतुलित बलशाली जो राम और लक्ष्मण हैं, उन्हें श्री हनुमंत लाल जी महाराज ने अपने कंधे पर उठा लिया। 2 अतुलित बलशालियों का भार श्री हनुमंत लाल जी महाराज अपने कंधे पर उठा के चलते। अस कह सकल कथा समझाई और लिए 2 जन पीठ चढ़ाई। और एक अतुलित योद्धा जो मेघनाथ है, वो हनुमान जी के सामने खड़ा भी नहीं हो पाता है। 12 पचार हनुमाना लेकिन निकट न आओ मरम सो जाना। तो हनुमान जी ने 3 महाबलियों को तो एक तरफ कर दिया। केवल एक महाबलशाली है जो हनुमान जी को धराधाम पर उतारता है, और वो है श्री भरत महाराज जी महाराज। जब उन्होंने देखा ये कोई है जो प्रज्वलित दीप शिखाओं के साथ में हिमगिरी शिखर को खड़ा करके ले जा रहा है, देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमान और बिनुफर सायक मार्यो चाप श्रवण लगता। आप देखोगे कि मंदिरों में या राम जी के धनुष्वाण की पूजा होती है। Right. So chalo, it was very nice to get the direct अपना छोटा सा सत्संग होता है उसमें we got Dr. Vedanti ji to speak to us directly, so that's really nice. And so enjoy the weekend, and we'll see you next Monday, coming Monday. Yeah.
Sure. Jai Shri Krishna. Okay. Hare Krishna. Shri Krishna, Hare Krishna.